Okay. So yesterday we have started Limited Liability Partnership Act 2008 is the law we have started yesterday. Now, this act, some basic information about the act yesterday we have discussed. That was Parliament of India has passed the bill of this act on 12th of December 2008. Then President gave its assent to this act on the 7th of January 2009. And this act called as the Limited Liability Partnership Act 2008 came into force. The enforcement date of the act is the 31st of March 2009 is considered to be the enforcement date of this particular act. This act is in all consisted of the 81 sections, 4 schedules are there in the act. Then we have discussed that these 4 schedules are talking about what? Number 1, first schedule is about suppose the partners has not made an agreement in between them about their partnership, then in the absence of an agreement between the partner, the rights and duties of the limited liability partnership firm partner is going to be governed by first schedule. अगर partners ने उनके बीच में agreement नहीं किया होगा partnership को लेकर, तो फिर उनके partnership के rights and duties जो है वो first schedule के हिसाब से govern होंगे. Second schedule deal with the point if any normal 1932 partnership want to get converted into the limited liability partnership, what will be the conversion procedure will be given in the second schedule or is given in the second schedule. Then third point we have discussed yesterday was suppose any private company want to get converted into the limited liability partnership, then what will be the procedure? That procedure is given in the third schedule. Okay, and then finally the fourth schedule also there. The fourth schedule is that one, unlisted public company get converted into the LLP, then what will be the procedure? That procedure is given in the fourth schedule of that we have discussed yesterday. Okay, now governing authority or governing bodies of the government dealing with the LLP are 2 bodies are there which are same to the company also. Okay, Minister of Corporate Affairs and Register of the Companies are the 2 administrating authorities under LLP Act 2008 for the administration of the LLP के administration के लिए 2 governing authority वहाँ पे दिए गए हुए हैं वहाँ पे. And our Indian Partnership Act 1932 is not applicable to the LLP. सीधी सी बात है, reason क्योंकि LLP का अपना own separate act है ना. And what is the name of the act which we are dealing here? LLP Act 2008, Limited Liability Partnership Act 2008. Now basically हमने ये भी point कल discuss किया था कि इस LLP form of organization की जरूरत ही क्यों पड़ी? What was the need of this type of organization? और इसका reason क्या था याद है आपको? 2 जो organizations है पार्टनरशिप नॉर्मल जो 1932 एक्ट वाली पार्टनरशिप है और कंपनी ये दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स भी है और इन दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी है. तो दोनों के बेनिफिट्स को स्पेशली कौन से वाले बेनिफिट्स को बोलो? पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी, आसानी से जिसमें चेंज किया जा सकता है, और कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. ओके, लिमिटेड लायबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इन दोनों का फ्यूजन करके कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेके है बोलो? LLP. मतलब पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी आपको और आपको एट द सेम टाइम लिमिटेड लायबिलिटी विद कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ये भी मिलेगा. ऐसे ये फ्यूजन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन has been brought. This is limited liability partnership to promote the entrepreneurs, to promote the professionals, to promote the corporate world. This organization has been brought into force. That is, we have yesterday discussed the need of the new form of limited liability partnership. Ki need kya thi? And now we are starting actual act today. That is first point. We are going to deal with the point limited liability partnership meaning and the concept. Very first of all, we will discuss with the meaning of the act. First of all, क्या discuss करेंगे हम लोग? Act का meaning discuss करेंगे. Okay, LLP is a new form of legal business entity with a limited liability. New form of business entity है, limited liability है. Then it is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at a low compliance cost, but it's also allow the partner, जो मैं आपको already बता चुकी हूँ, flexibility of arranging their internal structure as a traditional partnership. दोनों combination benefit मिल रहा है आपको. limited liability भी मिल रही है आपको. Both combination you are getting here. Okay, you are getting the benefit of the limited liability from company
and you are getting the flexibility of organizing your internal structure as a traditional partnership. Okay, so in all, limited liability partnership क्या है बोलो, it is a separate legal entity है, हाँ, while the LLP itself will be liable to the full extent of the asset, the liability of partners will be limited. ये देखो, ये बहुत important sentence है, हाँ, limited liability partnership में पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, समझ के लो, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट अंदर के पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है बोलो, लिमिटेड है। और हमारे नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या था याद है, फर्म की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ही, सवाल ही नहीं, बट अगर फर्म के एसेट कम पड़ते हैं तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी कैसी है बोलो, वहां पे अनलिमिटेड है। लेकिन एलएलपी में फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी ना पूरी, उसके लिए वो फर्म का बिजनेस कैसे लायबल होगा बोलो, without any limit, unlimited liabilities there on the firm, but members की liability अंदर के क्या है बोलो, limited है। How much limited या to what extent limited? To the investment they have made, जितनी उनकी investment है उतनी उनकी क्या हो जाएगी बोलो, liability consider की जाएगी वहां पे, हाँ। Now LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and the flexibility of partnership। घुमा घुमा के क्या वापस वही मुद्दा है, LLP एक alternative corporate business है, हाँ, जिसमें आपको दोनों बेनिफिट्स एट द सेम टाइम मिलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से आता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी आपको वहां पे मिल जाता है। ओके, सिंस एलएलपी कंटेन द एलिमेंट ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है इसमें एंड पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर भी है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं बोलो, दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड between the company and partnership. What it is called? It is called as a hybrid between the company and partnership, इसे हम लोग कॉल कर रहे हैं वहां पे। ओके, सो वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर समझे ये ऊपर का वहां पे हम हाँ याद भी नहीं रखते, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो हम ऐसे भी वहां पे शुरू कर सकते हैं, हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हाँ, इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। मीनिंग एंड कंसेप्ट में आप ये चार्ट भी याद रखते हो ना, तो भी आपको जो मटेरियल चाहिए वो सारा मटेरियल इस चार्ट में ओनली कवर हो गया। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, limited liability partnership is a new form of business entity with a limited liability. Okay, LLP is an alternative corporate business vehicle. Alternative to whom? Alternative to partnership and alternative to the company. Okay, then LLP allows the partners the flexibility of organizing their internal structure. Partnership से क्या मिला बोलो इनको, flexibility मिल गई, हाँ। Then LLP की liability लेकिन unlimited है, हाँ। LLP itself will be liable to the full extent of the assets. LLP assets के full extent के लिए क्या हो जाएगी, liable हो जाएगी वहां पे, हाँ। बट अंदर के मेंबर्स पार्टनर्स की लायबिलिटी लेकिन क्या बोलो, लिमिटेड है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड, मतलब जितना हमने ऊपर डिस्कस किया वो सारा का सारा इस एक चार्ट में क्या हो रहा है बोलो, वहां पे कवर हो रहा है, हाँ। और ये चाहो तो एक्स्ट्रा के लिए हम लोग ना ये लास्ट का बस इतना पैराग्राफ याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए, हाँ। सो LLP is an alternative business form that gives the benefit of limited liability from company and flexibility from partnership, and opposite side में LLP दोनों का फ्यूजन है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं बोलो, हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। तो ये चार्ट एंड ये इतना लास्ट के दो लाइन इतना भी याद रखते हो और ऊपर का नहीं भी याद रखते तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उस चार्ट में पूरा कवर हो चुका है वहां पे, हाँ। Now after the meaning and concept of the LLP, we will deal with the characteristics or what you can call as the essential features of the limited liability partnership, हाँ। 80% फीचर्स कंपनी के रिपीट फीचर्स से जो हमने डिस्कस किए थे, हाँ, बस 20% फीचर्स थोड़े से अलग है, बाकी 80% सिमिलर पॉइंट्स वापस आ जाएंगे जो कि इसमें थे बोले वहां पे जो कंपनी को भी अवेलेबल वहां पे थे। हमने जो कंपनी एक्ट डिस्कस इसीलिए पहले किया था हमने, हाँ। लेट्स स्टार्ट। First of all, just like a company, LLP have an independent corporate existence which is separate from its members. Okay, so LLP once get registered, it become a body corporate. The identity of inside member will be ignored, and the identity of the company, that is LLP, will be concerned. हाँ, Section 3 of the LLP Act provide that LLP क्या बोलो? LLP is a body corporate है, हाँ, formed and incorporated under the Act है, हाँ। LLP एक separate legal entity है जिसका अपने पार्टनर से अलग खुद का एक ओन एग्जिस्टेंस है, हाँ। सो जस्ट लाइक अ कंपनी, LLP is also body corporate
Once get incorporated, registered, it become a separate legal entity and it get a separate identity from its partners, which is not there in our normal partnership. याद है ना, normal partnership register भी होती है, तो भी हमारी 1932 एक्ट वाली पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस किससे, पार्टनर्स से है. हाँ, देन वेरी नेक्स्ट पॉइंट उसी से आता है, क्योंकि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस कैसा बोलो, हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस है. हाँ, परपेचुअल सक्सेशन इज देयर, अंदर के पार्टनर आते जाते रहेंगे बट एलएलपी का एग्जिस्टेंस फॉरएवर वहां पे रहेगा. हाँ, सो एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेंजेस इन अ पार्टनर्स. पार्टनर्स का चेंज होना हो फर्क नहीं पड़ता, वहां पे अंदर के पार्टनर जाते आते रहेंगे बट एलएलपी का एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा बोलो, कंटिन्यूस रहेगा. आपको याद है हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप, हमारे नॉर्मल पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर के डेथ या इंसॉल्वेंसी से एज ए जनरल रूल फर्म डिसॉल्व हो रही थी. हाँ, पर यहाँ पे एज ए जनरल रूल फर्म डिसॉल्व नहीं होती है. एक हाथ पार्टनर के मरने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अंदर के पार्टनर आते जाते रहेंगे बट एलएलपी का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए रहेगा until it is wind up. हाँ, तो दिस पॉइंट इज आल्सो सिमिलर टू किसके बारे में, देखो कंपनी के बारे में. कंपनी वाज आल्सो हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन. याद है हमने वो केस लॉ डिस्कस किया था कि इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब cannot end the life of the company. हाँ, अंदर के सारे मेंबर मर गए बट फिर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या नहीं हो गया वहां पे. हाँ, खत्म नहीं हुआ वो वहां पे. हाँ, सो एलएलपी को क्या बोलो, perpetual succession ऐसे कंसिडर किया गया, that is continuous existence has been there to the LLP. After going through the concept of limited liability partnership, and then the need for the limited liability partnership, now the next point which we are going to discuss here, that next point is the important definitions of the LLP Act. LLP Act के नीचे आने वाले कुछ important definitions क्या किए हुए वहाँ पे मॉड्यूल में दिए हुए, so we will deal with that important definitions first of all. Let's start. देखो क्या क्या वहाँ पे. First definition is given of the body corporate. पहली जो definition दी हो किस चीज की दी हुई है वहाँ पे, body corporate की definition वहाँ पे दी हुई है. हाँ, now देखो क्या क्या. It means a company is defined under Section 3 of the Companies Act, 1956, and now 1956 के बाद present 2013 and include company भी include है body corporate में, और बॉडी कॉर्पोरेट में साथ ही साथ क्या इंक्लूडेबल हो, इट इज इंक्लूडिंग द एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट भी है, एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी इंक्लूडेड है. हाँ, बट क्या इंक्लूडेड नहीं है देखो बॉडी कॉर्पोरेट में, अ कॉर्पोरेशन सोल इज नॉट इंक्लूडेड इन द बॉडी कॉर्पोरेट. अभी कॉर्पोरेशन सोल मतलब क्या होता है पता है, एक सिंगल पर्सन एक ऑफिस होल्ड करता है जिसको परपेचुअल सक्सेशन होता है. हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो कॉर्पोरेशन सोल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अंदर का पर्सन होगा ना, कभी उसके अंदर अभी जो है कोविंद वो है, या फिर कभी उसमें कलाम थे, कभी प्रतिभा पाटिल थे, बट वो ऑफिस कंटिन्यू रहता है ना. अंदर का इंसान मरने से वो ऑफिस या अंदर का इंसान चेंज होने से ऑफिस तो वहां पे नहीं जाता, तो उसको भी एक परपेचुअल सक्सेशन और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. तो कॉर्पोरेशन सोल मतलब ना लाइक कोई ऐसा ऑफिस जिसमें एक ही पर्सन है बट स्टिल उसका एग्जिस्टेंस कैसा बोलो, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. हाँ, तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इंक्लूडेड है, बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया इंक्लूडेड है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी रजिस्टर्ड इन आउटसाइड इंडिया भी इंक्लूड है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में कौन इंक्लूड नहीं है बोलो वहां पे, it is not including a corporation soul, it is not including a cooperative society registered under any law for the time being enforced, क्योंकि cooperative society को उनका independent law होता है, महाराष्ट्र cooperative societies act या इंडियन cooperative society act, तो उनके अपने own laws है. and even कौन include नहीं है देखो, last one, any other body corporate जो company नहीं है which is central government by notification on the official gazette स्पेसिफाई, या अदर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये किस में नहीं आएगा, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा.
सो 3 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है, दैट्स अच्छा। एक कंपनी खुद इंक्लूड है हाँ बॉडी कॉर्पोरेट में, जो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे रजिस्टर्ड है। दूसरा कौन इंक्लूड है बोलो वहां पे, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, LLP रजिस्टर्ड अंडर इंडियन लॉ भी है हाँ। और कौन इंक्लूड नहीं है, कॉर्पोरेशन सोल इंक्लूड नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इंक्लूड नहीं है, एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो इंक्लूड नहीं है वहां पे, दैट्स अच्छा। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बहुत रेयर पूछा होगा हाँ। तो सारे डेफिनेशन ऐसे ही है, मतलब बस अननेसेसरली उसको ऐड आउट किया उन्होंने हाँ। बिजनेस मतलब एनी काइंड ऑफ द ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन हाँ। LLP एक्ट के नीचे पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है बोलो, LLP एक्ट के नीचे पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर सकती है, ठीक है। अब बिजनेस कर सकती है मतलब क्या कर सकती है, इट कैन डू एनी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा हाँ। नाउ मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको याद है, जैसे हमारी कंपनी में बहुत सारे मेंबर है बट मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर्स के हाथ में, ओके। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ना बहुत सारे पार्टनर्स है हाँ। ऐसे पार्टनर्स के नंबर पे लिमिट कुछ नहीं है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन जिन पार्टनर्स के हाथ में होगा उनको हम क्या बुलाएंगे बोलो, DPs, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ओके। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज पर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के हिसाब से जिसको डेजिग्नेट किया वो मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर है हाँ। सारे डेफिनेशन ऐसे ही है हाँ, उसको कोई लॉजिक ही नहीं है, बिना वजह ऐड किया। एंटिटी मतलब हाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हाँ। एंटिटी मतलब क्या है, वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर किया है, जो ये जो सारे सेक्शंस है पार्टनरशिप एक्ट के हाँ, उसमें भी इसका रेफरेंस हमें मिलेगा। एंटिटी की डेफिनेशन तो याद भी रखने की जरूरत है बिल्कुल हाँ। देन फाइनेंशियल ईयर देखो क्या गया, financial year in relation to the LLP means the period from 1st day of the April or year to the 31st day of the March of the following year। आपको पता है कोई भी नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही होता है हाँ, 1st day of the April से शुरू होता है, 31st of March को वो एंड हो जाता है। However, in case of LLP incorporated after 30th day of the September of the year, financial year may end on the 31st day of the March of the year next following that year। मतलब ना कोई LLP बाद में शुरू हुई है कब, अप्रैल के बाद हाँ, 1st अप्रैल के बाद में लेकिन कब स्पेशली कब, 30th सितंबर के बाद में, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या पकड़ा जाएगा बोलो वहां पे, फाइनेंशियल ईयर उसी साल के 31st डे ऑफ मार्च को एंड हो जाएगा हाँ। देखो हाउएवर इन केस द LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर LLP इनकॉर्पोरेट कब हुई, 30 सितंबर उस साल के, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। वहां पे अराउंड तो वो एक 1.5 साल का ईयर उनका अराउंड हो जाएगा वहां पे हाँ। देन फॉरेन LLP मतलब क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो वहां पे, इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। आपको याद है ना, फॉरेन कंपनी डिस्कस की थी हमने कंपनीज एक्ट के नीचे, कॉपी पेस्ट डेफिनेशन है हाँ। फॉरेन कंपनी क्या थी याद है ना, व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। सेम यहाँ पे ऐसा ही है, फॉरेन LLP मतलब LLP फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हाँ, बट जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो मतलब क्या है बोलो वहां पे फॉरेन LLP है हाँ। देन नेक्स्ट वन देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 सब क्लॉज N में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के नीचे रजिस्टर्ड है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, LLP कंसिडर कर रहे हैं वहां पे हाँ। नाउ LLP के पार्टनर्स के बीच में उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे होंगे, उसके लिए उनके बीच में क्या होगा बोलो, एक LLP एग्रीमेंट होगा राइट हाँ। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये हमारी अगली डेफिनेशन है हाँ। इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ द LLP एंड बिटवीन द LLP and its partners which determine the mutual rights and duties of the partner and the rights and duties in relation to the LLP। किस किस के बीच का रिश्ता ध्यान में आ गया, LLP agreement means an agreement between number 1 partners and LLP, आप ऐसे अच्छे से लिख देना हाँ। It means an agreement between small a partners and LLP, और करो then B करो between LLP and partners हाँ, नीचे लाइन छोड़ के जाओ, which determine क्या determine करता है, mutual rights and duties of the partner
एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द एलएलपी। पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा होगा और साथ ही साथ पार्टनर्स का और एलएलपी का रिश्ता कैसे होगा वो कौन डिटरमाइन करता है बोलो, एलएलपी वहां पे डिटरमाइन करता है, एलएलपी एग्रीमेंट डिटरमाइन करता है। हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, पार्टनर मतलब क्या है। हाँ, पार्टनर इन रिलेशन टू द एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। सिंपल, एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनर बना है वो मतलब फर्म का पार्टनर है। सिंपल, वहां पे ये भी पॉइंट हमें गया है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, save otherwise provided provision of Indian Partnership Act not applied to LLP। very well aware, हमने डिस्कस किया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है बोला, एलएलपी को, क्योंकि एलएलपी को अपना ओन एक्ट है ना, एलएलपी एक्ट 2008 वहां पे। हाँ, देन पार्टनर्स, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन द एलएलपी। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वापस। हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कंपनी जब हमने पढ़ा था आपको याद होगा तो, कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी मिला के तीसरी कंपनी फॉर्म कर सकती है। हाँ, एक कंपनी और एक ह्यूमन बीइंग मिला के दूसरी कंपनी फॉर्म कर सकता है। हाँ, तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी मेंबर हो सकती है, राइट। हाँ, एक कंपनी में दूसरी कंपनी शेयर्स लेके उनकी मेंबर हो सकती है। तो क्या सेम रूल एलएलपी को अप्लाई होता है कि एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ, एलएलपी की पार्टनर हो सकती है? तो यस, हाँ, एक कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है क्योंकि एलएलपी को इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है। हाँ, एंड इंडिविजुअल भी हो सकता है एलएलपी का पार्टनर, या एलएलपी की पार्टनर कोई कंपनी भी हो सकती है। बी क्लियर। हाँ, एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट may become a partner in the LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner of the LLP if, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन है देखो इमीडिएटली कि कौन एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। नंबर वन, if is found to be unsound by the competent jurisdiction of the court and finding in a force। हाँ, अगर वो competent jurisdiction की कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया तो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। नंबर टू, अगर वो इंसॉल्वेंट है, उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, ही इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। हाँ, एंड लास्ट, अगर वो इंसॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन किया हुआ है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए और वो एप्लीकेशन अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये तीनों पर्सन एलएलपी के पार्टनर होने के लिए कैपेबल नहीं है। सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी व्हाट, disqualifications for being a LLP partner. Back again, see what are the disqualifications then, man. Number one, he is declared to be unsound mind by the court of competent jurisdiction. Number two, he is an undischarged insolvent, मतलब insolvency उसकी प्रूव हुई है लेकिन अभी तक insolvency proceeding खत्म नहीं हुआ है, assets liabilities का हिसाब। And number three, his insolvency proceeding is pending in the court of law. All these are considered to be disqualified from becoming a partner in the limited liability partnership. Okay, now देखो minimum maximum number of the partner in the LLP वाला पॉइंट आया, अगला डेफिनेशन। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 6, मिनिमम कितने चाहिए? ऑफ कोर्स 2 चाहिए, राइट। हाँ, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। हाँ, आपको कंपनी का वो मैंने केस बताता याद है सबको कि कंपनी के सारे मेंबर्स, हाँ, कार से बाहर गए हुए थे। प्राइवेट कंपनी थी समझो, से फॉर एग्जांपल एक 4 मेंबर थे उनको, हाँ, और सारे के सारे मेंबर्स ना कार से कहीं घूमने गए थे और उस कार का एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे मेंबर्स कंपनी के मर गए। हाँ, तो क्या कंपनी मर गई? तो हमने डिस्कस किया था कि नहीं, इवन ऑन द डेथ ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी डिड नॉट डाई बिकॉज कंपनी हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना था याद है, मैंने बताया था कि 6 मंथ तक वेट करना है। हाँ, 6 मंथ तक जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड है ना, पब्लिक कंपनी होगी तो 7 और प्राइवेट कंपनी होगी तो 2। अगर वो 6th मंथ तक रिज्यूम हो जाता है तो कोई और कंपनी के शेयर्स लेके वो नंबर फुलफिल हो जाता है तो कंपनी बिजनेस क्या करेगी, आगे कंटिन्यू करेगी। और अगर 6 मंथ में भी वो नंबर रिज्यूम नहीं होता है 2 और 7, तो फिर 6 मंथ के बाद किसके लिए अप्लाई करना है बोलो, वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करना है। याद है वो प्रोविजन आपको जो हमने कंपनी में डिस्कस की थी, सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है बोलो, एलएलपी को एप्लीकेबल है। अगर एलएलपी का मिनिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर बिलो 2 कहीं पे चला जाता है तो एलएलपी डिसॉल्व नहीं होती है। हाँ, एलएलपी विल कंटिन्यू द बिजनेस फॉर 6 मंथ, they will try to resume the number within 6 months, and if didn't resume within 6 month number, then we will go for the वाइंडिंग अप। अदरवाइज विद इन 6 मंथ वो नंबर रिज्यूम होगा
so the business will be continued again. हाँ, if at any time the number of the partner of the LLP reduced below कितना 2 and the LLP carries on the business for more than 6 months. हाँ, लेकिन अगर below 2 number के साथ LLP 6 महीनों से ज्यादा बिजनेस करती है, हाँ 6 महीने के बाद में भी बिजनेस करती है बिलो 2 नंबर को लेके, हाँ, और जिन लोगों को पता है फिर अंदर के कि बिलो 2 नंबर गया फिर भी बिजनेस LLP रन कर रही है, उनकी लाइबिलिटी फिर ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है ना कि नंबर बिलो गया फिर भी वो बिजनेस क्या कर रहा है, वहां पे कंटिन्यू कर रहा है, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे LLP के सारे ऑब्लिगेशंस के लिए, लाइबिलिटीज के लिए. हाँ, देखो क्या गया, who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on the business after 6 months, and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone, shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. ये copy paste कंपनी की प्रोविजन और LLP की प्रोविजन सेम है. विद इन 6 मंथ वो नंबर रिज्यूम हो गए तो ठीक है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू लॉ विद इन आफ्टर 6 मंथ फाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करना पड़ता है. अगर आपने विद इन 6 मंथ में वो बिलो मिनिमम नंबर पे बिजनेस कर रहे थे तो इट्स ओके 6 मंथ तक, but even beyond 6 months you keep continuing the business with the below 2 number, then after that you will be liable personally for all the obligations of the LLP incurred during that period. So that is minimum number of the partners. Okay, then next one देखो अगला पॉइंट क्या रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर. याद है क्या बताया था आपको, जैसे इधर हमारे कंपनी में कौन है वो डायरेक्टर्स वगैरह है, वैसे इधर कौन है बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है. हाँ, लेट्स लुक. Every LLP shall have at least 2 designated partner for an individual. LLP को कम से कम कितने designated partner चाहिए, देखो 2 कम से कम designated partner चाहिए. हाँ, देखो लेकिन ये 2 कम से कम designated partner human being चाहिए. DP जो है वो कम से कम 2 DP चाहिए, और कम से कम 2 DP क्या होने चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, ह्यूमन बीइंग. हाँ, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. हाँ, और उन 2 पार्टनर में से कम एक पार्टनर क्या होना चाहिए बोलो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए वहां पे. हाँ, देन इफ LLP ऑल द पार्टनर आर अ बॉडी कॉर्पोरेट. हाँ, और समझो फिर आपको डाउट शायद मन में आया होगा कि अगर LLP का हमने ऊपर देखा ना कि पार्टनर कौन बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है, तो अगर 2 कंपनी ने मिला के LLP बनाई होगी तो फिर क्या करे, क्योंकि कंपनी के LLP के पार्टनर ही कौन है, 2 कंपनीज है, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल कहाँ से आएगा, क्योंकि पार्टनर ही कौन है, पार्टनर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल कहाँ से आएगा, उसका सोल्यूशन भी लॉ ने दिया है. हाँ, क्या सोल्यूशन दिया देखो लॉ ने उसका हमें, if LLP all the partner are a body corporate, सारे के सारे पार्टनर ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या 1 or more partner are individual and body corporate, एटलीस्ट क्या करना है देखो, सोल्यूशन है ये यहाँ पे, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल who are a partner of the LLP. हाँ, अगर समझो है ह्यूमन बीइंग तो कम से कम 2 ह्यूमन बीइंग LLP के पार्टनर में से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, और अगर नहीं है ह्यूमन बीइंग पार्टनर LLP को तो उनके नॉमिनीज, वो कंपनीज अपने नॉमिनीज सेंड करेंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे. हाँ, नॉमिनीज ऑफ सच अ बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. हाँ, एंड ऊपर एक पॉइंट डिस्कस किया था हमने, याद है, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाँ, नाउ व्हाट दिस वर्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर, कम से कम 182 डेज